નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરા શહેરના સયાજીનગર ગૃહ ખાતે વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરજી યુવાનો સાથે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન કરી વિદેશ નીતિ પર ચર્ચા કરતા જોવા મળ્યા। રાઇઝિંગ ઇન્ડિયા એન્ડ ધ વર્લ્ડ ટોપિક પર યોજાયેલા સેમિનારમાં વડોદરાની યુનિવર્સિટી અને કોલેજના 1600 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો અને જેને કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરજીએ સંબોધિત કર્યા હતા। આ કાર્યક્રમ જ્યારે વડોદરા શહેરમાં યોજાયો હોય 2200 વિદ્યાર્થીઓએ સેમિનારમાં ભાગ લેવા માટે નોંધણી કરાવી હતી અને 1600 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં રાજ્યના મંત્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, રાજ્યના મંત્રી મનીષાબેન વકીલ, પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, વડોદરા શહેર અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજય શાહ, વડોદરા શહેરના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, વડોદરાના પ્રથમ નાગરિક કેયુર રોકડિયા, ધારાસભ્ય જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા, ધારાસભ્ય સીમાબેન મોહિલે, યુવા બોર્ડના પ્રદેશ સંયોજક કૌશલ દવે, વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર, વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરા ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હોય કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરજીએ રાઇઝિંગ ઇન્ડિયા એન્ડ ધ વર્લ્ડ વિષય પર યુવાનોને માર્ગદર્શન આપ્યું। દેશના વિકાસશીલ પુરુષ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે દેશને એક નવી દિશા આપી છે અને વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની પકડ મજબૂત થઈ રહી છે, ત્યારે દેશના યુવાનો આ વિષયને સમજી શકે તે માટે આ સેમિનાર યોજાયો હતો। મોદી સરકાર આવ્યા પછી વિદેશ નીતિ અને વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન શું છે એ વિષય પર દેશના વિદેશ મંત્રી ટુ વે કોમ્યુનિકેશનના આધારે યુવાનો સાથે વાતચીત કરી। આ સેમિનારમાં વડોદરાની આજુબાજુની યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરતા વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરજીએ કહ્યું કે હું આજે અહીં એકલો નથી આવ્યો, 52 દેશોના રાજદૂતોને લઈને આવ્યો છું। રાજદૂતો માટે આ ભારત જાણવાનો અવસર છે, ગુજરાત માટે આ વિશ્વને જાણવાનો અવસર છે। મોદી સરકારની ઉપલબ્ધિઓમાં ઓપરેશન ગંગા મહત્વનું છે। ફેબ્રુઆરીમાં યુક્રેન યુદ્ધમાં 22,000 વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા, 24 ફેબ્રુઆરીએ 20,000 વિદ્યાર્થીઓ યુક્રેનમાં ફસાયા। માર્ચમાં ભારત સરકારે વિદ્યાર્થીઓને લાવવાના પ્રયાસ શરૂ કર્યા, વિદ્યાર્થીઓને હેમખેમ પરત લાવવામાં આવ્યા। કોવિડ મહામારીની વાત કરીએ તો 70 લાખ ભારતીયો વિદેશમાં ફસાયા, જેમાંથી 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓ હતા। ભારત સરકારે મિશન વંદે ભારત હાથ ધરી અને સૌને મદદ કરી। વેક્સિન માટે પણ ભારત સરકારે બધા દેશો પાસેથી રો મટીરિયલ મેળવ્યું અને તે સમયે પ્રધાનમંત્રીએ અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટને સમજાવ્યા કે તમને જરૂર પડતી વેક્સિન છે, દુનિયા માટે ન રોકો। પ્રધાનમંત્રી મોદીના કહેવાથી અમેરિકાને સૌથી પહેલા વેક્સિન મટીરિયલ આપવાની મંજૂરી આપી। હવે મોબાઈલ એપલ 14 ફોન પણ ભારતમાં બનશે, ભારતમાં એપલ 14નું મેન્યુફેક્ચરિંગ થશે તેવું પણ તેમણે નિવેદન આપ્યું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સમગ્ર મામલે व्यक्तिगत ध्यान આપ્યું છે તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યું। के माध्यम से उन्होंने दुनिया में आयुर्वेद के बारे में कितना दुनिया एक जो ज्ञान दुनिया को अब पिछले सालों में मिली है और दुनिया की कंफर्ट जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन वेलनेस के साथ बढ़ी, तो ये आप अलग अलग मैंने विदेश नीति के पहलू आपके सामने रखे हैं। तो इसका पूरा अगर मैं इसको जोड़ूं तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि आजकल दुनिया जो है हमारी, मैं कहूँगा प्रतिष्ठा, जो जो जब प्रधानमंत्री जी कोई भी दुनिया के स्टेज में जाते हैं और आप उसका जो वहाँ हैं माने नेता लोग या वहाँ की पब्लिक या जो भी मीटिंग में जाते हैं उनका आप रिएक्शन देखें, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया जो है उसके लिए एक विज़न चाहिए। ये विज़न जो है प्रधानमंत्री ने दिया है और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस विज़न को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो है देश को चलाना होगा और देश को डबल इंजन में चलाना होगा, और उसका मतलब आप सब जानते हैं। तो मेरे से पूछा गया कि पहले माने दुनिया चलती है, देश ही चलती है, पहले के हिसाब से कैसे, तो मैं कहूँगा कि ये डबल इंजन देश जो है हमारी, पहले जब सिंगल इंजन या कभी कभी बिना इंजन के चलती थी तो सेकेंड गियर में चलती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड। अब दुनिया को दिखाई देता कि ये गाड़ी 5th गियर में जा रही, और इसमें मुझे बहुत गर्व की बात है कि 5th गियर में गाड़ी के अंदर बैठे विदेश मंत्री का
कहीं योगदान है, कहीं सौभाग्य भी है कि इस गाड़ी में बैठने का। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपके साइड से कुछ प्रश्न होंगे तो मुझे इसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। हमारे साथ 53 राजदूत और उनके कुछ लोगों जो हैं उनके हस्बैंड या वाइफ भी आए थे साथ, और हमारी कोशिश ये थी कि उनको इस समय में गुजरात का एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि नवरात्र का समय जो है वो उनके लिए माने ये तो दुनिया में मशहूर है। तो आज शाम दिन में तो वो लक्ष्मी विलास महल देखने गए थे, राजा रवि वर्मा के पेंटिंग जो हैं उनके लिए उन्होंने वो वहाँ म्यूज़ियम में गए थे। शाम को वो गरबा प्रोग्राम में जाएंगे और कल वो केवड़िया जाएंगे, एकता नगर जाएंगे और उनका वहाँ कार्यक्रम है। और इसमें हमारी कोशिश है कि वो जो दुनिया के राजदूत जो भारत में जो दिल्ली में जो रहते हैं वो भारत को ठीक तरह समझे, और इसके लिए उनका अलग अलग स्टेट्स में जाना जो है बहुत ज़रूरी है। कोविड के समय में ये पिछले 2 साल में लोग जा नहीं पाए, तो ये थोड़े गैप के बाद ये ट्रिप्स ऐसे हो रहे हैं। मैंने सोचा कि गुजरात के प्रतिनिधि होते मैं सबसे पहले उनको गुजरात ही ले आऊँ, और वैसे कुछ और भी स्टेट्स आगे तो और भी अलग अलग स्टेट्स वो जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वो सब आए हैं यहाँ, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि यहाँ जो परिवर्तन जो हुआ है वो खुद अपने आँखों से देखें, और जो एकता नगर का मैसेज जो है वो भी वो वापस दिल्ली ले जाए। तो ये है। और यहाँ तो बातचीत जो यहाँ जो इंटरेक्शन जो हुआ आपने तो सुन ही लिया था। तो मैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आजकल देश में विदेश नीति और जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ जो हैं, देश के बाहर जो उपलब्धियाँ जो हैं उसके बारे में खासकर जो नई पीढ़ी जो है उनको इसके बारे में कितनी रुचि है, उनका कितना उत्साह है, ये देखने के लिए मुझे खुद मिला कि आपने देखा होगा कि पूरा हॉल भरा हुआ था। तो ये ग्लोबलाइज दुनिया है, जो हमारी जो नई पीढ़ी जो है वो तो सब हमसे ज़्यादा ये पहचानते हैं। और मैं तो ये इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में अगर मैंने पूरे देश में परिवर्तन आया है, पर जो मेरा विभाग जो जिसमें मुझे जानकारी है वो विदेश विभाग है, और उसमें गुजरात का खास इंटरेस्ट है। क्योंकि दुनिया में अगर भारत के कहीं एक स्टेट के लोग बाहर जाते हैं कि गुजरात और उसके बाद केरल के लोग, एक देश नहीं होगा जहाँ गुजराती नहीं। और जो तो जब हम बाहर की बात करते हैं एक किस्म से हम गुजरातियों की जो देखभाल जो है उसकी भी बात करते हैं। और हर जैसे हम यहाँ देश के अंदर योजना बनाते हैं, जो वही सोच जो है वो देश के बाहर भी ले जाते हैं। और हमारी कोशिश है कि कोई भी कहीं भी मुसीबत में हो, किसी का भी हमारे नागरिक उनका कुछ परेशानी में हो, उनका कोई कुछ हित है, उनका कुछ वहाँ इंटरेस्ट है, तो उनको पूरा समर्थन मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये जो इस स्टेट में खासकर विदेश नीति के बारे में जितना हम समझा सकें और जो परिवर्तन जो हुआ है उसको हम उदाहरण के तहत हम लोगों के सामने रख सकें, तो उनको मोदी सरकार की जो परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी समझ हो। तो चल नहीं, ऐसा है कि कल जो है जो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो है अमेरिका का प्रस्ताव था, और वो हमारी जो पोजीशन जो थी वो शुरू से वही पोजीशन थी कि हम शांति के पक्ष में हैं, कि हम सोचते हैं कि युद्ध से किसी का भला ना हो। और हमारी तो ये चाह है कि लोग जो हैं वापस जो हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी में जाएं। ये प्रधानमंत्री शुरू से कह रहे हैं, और कल हमारे राजदूत जो हैं उन्होंने वही पोजीशन वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में लिया था। सर मेरा नाम रंजन कुमार है सर। See, Indian government is very clear that the interests of Indians
and people of Indian origin is very close to us. Of course, legally, Indian nationals are of higher importance. So, wherever there is such a situation, we have spoken up and we have tried to work with governments concerned.